Good evening, everyone. Let us start our session with a short meditation. Sit back comfortably. Am I audible? Yes, you're audible. Thank you, Nikadi. So let's meditate. Let me look at myself. I, the soul, the sentient energy, beautiful being. All my thoughts and sense are according to my perspective. Situations in my life are based on my past karmic path. My thoughts and decisions today are my present karma. I can take others' advice, but after that, the decision is my own. I respect and trust my decision. I respect and trust my decision. I respect my choice. My choice is not dependent on others' opinion. My happiness is not dependent on others' appreciation. I live in self respect, respecting my own choices and decisions in life. I live in self respect, respecting my own choices and decisions. I am ready to create a change. I am made to be magical and extraordinary things in the world. Om Shanti. Is the screen visible? Yes, it's visible. Thank you. So today's topic is connecting truly in relationships. Before starting, let us understand that we are in a relationship with everyone we meet, with our interactions. Whether our interactions is for a short period of time or long, we are connecting with them. Our energy in this interaction matters a lot because this energy, whether positive or negative, creates a karmic account and we get returned accordingly. So, what it means to truly connect in a relationship, we will understand in this chapter. So, Suresh Oberoi asks, I have an apt quote to begin with. We have a tendency to want the other person to be a finished product, while we give ourselves the grace to evolve. Sister Shivani, we want others in our relationship, be it our spouse, children, or colleagues, to be a finished product. But when it comes to us, we say, it is okay, I am improving gradually. We justify our actions by saying what to do, it is my nature, or these habits run in our family. But we give no such liberty to others and want them to be perfect, and that too according to our definition of perfection. सुरेश ओबेरॉय जी ने स्टार्टिंग में कहा कि उन्होंने एक कोट पढ़ा है जो कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है कुछ चैप्टर से उससे एकदम मैच करता है कि हमारी टेंडेंसी है हम सामने वाले को तो चाहते हैं कि वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो एकदम कंप्लीटली फिनिश्ड है प्रोडक्ट पूरा रेडी टू कंज्यूम है वैसे वाला और हम खुद के लिए कहते हैं कि हम तो इवॉल्व कर रहे हैं मतलब हम वर्क इन प्रोग्रेस है हम सीख रहे हैं
तो दूसरों को तो हम फिनिश प्रोडक्ट चाहते हैं और खुद के लिए हम कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस है। तो दूसरे से शिवानी समझा रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में चाहे हमारा स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, कलीग्स हो, सबको हम चाहते हैं कि वो फिनिश प्रोडक्ट हो। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, ये मेरी नेचर है, ये हैबिट्स तो हमारी फैमिली में चलती आ रही हैं। लेकिन जब दूसरों की बात आती है तो हम दूसरों को ऐसी कोई आजादी नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो। और परफेक्ट भी किसकी डेफिनेशन से हो? हमारी डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन से हो। Oh yes, I did not realize that we want others to fit into our image of a perfect daughter, perfect son, and want them to be as we define them. सुरेश जी कह रहे हैं मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया, हम दूसरों को अपनी इमेज ऑफ अ परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट सन ऐसा चाहते हैं, हमारी इमेज ऑफ परफेक्शन के हिसाब से। We want others to be perfect. According to our standards, it may seem to be a small thing, but this desire is the source of most of our conflicts. Others are perfect the way they are, with their own संस्कार्स। इस लाइन को तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। Others are perfect the way they are, with their own संस्कार्स। हम सबके संस्कार होते हैं, सबके डिफरेंट संस्कार हैं, क्योंकि सबकी सोल जर्नी डिफरेंट है, यूनिक है। और हमारा जो डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने सेट किया है, तो दूसरे उसके ऊपर खड़े उतरे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी एक हिडन डिजायर होती है कि दूसरे हमारे हिसाब से परफेक्ट हो, जो हमने परफेक्शन का स्टैंडर्ड सेट किया उस हिसाब से हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सभी लोग परफेक्ट होते हैं अपने ओन संस्कार से। इस बात को अगर याद रखेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत सारी वजहें टल जाएंगी। दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। सपोज आई हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ सिटिंग एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। यू आर पासिंग बाय एंड टेलिंग मी डोंट सिट लाइक दिस, सिट straight. I will resist the change immediately, as I may not be comfortable the way you want me to sit. This is because my current posture is perfect for me. Many times parents say they know what is perfect and right for their children, but this may not be the case always. इन सिस्टर शिवानी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक तरीका है मान लीजिए बैठने का, और उसमें हम बैठे हुए हैं और हम काफी कंफर्टेबल है, दूसरा आकर के कहता है कि ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो। तो इमिजिएटली क्या करेगा वो इंसान? वो तो रेसिस्ट करेगा ना, क्योंकि वो जिस तरह से बैठा है वो काफी कंफर्टेबल है, उसका करेंट पोस्चर उसके लिए परफेक्ट है। बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनके चिल्ड्रन के लिए क्या परफेक्ट है, क्या राइट है, पर ये हमेशा हो जरूरी नहीं। When someone chooses a life partner or a family welcomes their new daughter-in-law into their house, they already have an image in their mind about how that person should be. They have a preconceived image of a perfect person, which they create on the basis of the sanskars they have. There are three images of a person for us. अगर मान लीजिए किसी ने कोई डिसीजन लिया अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के, तो जब वो फैमिली वेलकम करती है अपने डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ को, तो उनके माइंड में ऑलरेडी एक परफेक्ट पिक्चर होती है, परफेक्ट पर्सन किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और ये इमेज वो कैसे फॉर्म करती है फैमिली? वो अपने संस्कार के बेसिस पे फॉर्म करती है। कोई भी पर्सन होता है उसकी तीन इमेजेस होती है हमारे लिए। फर्स्ट वी क्रिएट एन इमेज ऑफ हाउ ही शुड बी। पहला क्या है, हम खुद इमेज क्रिएट करते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए, ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। देन वी मेक दैट पर्सन एंड परसीव हिम थ्रू आवर संस्कार्स। उसके बाद हम उस पर्सन से मिलते हैं और फिर उसको परसीव करते हैं कि वो कैसा है, हमारे खुद के संस्कार के लेंस के थ्रू हम उनको देखते हैं। दैट इज द सेकेंड इमेज वी क्रिएट फॉर हिम। एंड द थर्ड इज व्हाट he actually is. People are not what we think them to be. We can never really know anyone too well because we know them only through the filter of our sense bias. We simply cannot see them from another point of view.
तो हमने तीन इमेजेस क्या क्या देखी। पहली, कि हम पहले उस पर्सन से मिलने से पहले एक इमेज क्रिएट करते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड इमेज, जब हम उस पर्सन से मिलते हैं तो हम अपने संस्कार के थ्रू ये अंदाजा लगाते हैं कि ये पर्सन ऐसा है। और थर्ड, वो पर्सन जो एक्चुअली में होता है वो इमेज होती है। और हम जो सोचते हैं लोगों के बारे में, जरूरी नहीं है कि वो हो। हम जो सोच रहे हैं वही राइट इमेज हो उसकी। क्योंकि हम किसी को भी इतना अच्छे से नहीं जान पाते, क्योंकि हम उनको देखते कैसे हैं, अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू देखते हैं। और हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू उनको नहीं देखते। We may not even know ourselves fully. Sometimes I'm surprised at my own reaction to various situations. सुरेश जी कह रहे हैं कि हम खुद को ही अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। कई बार मैं अपने खुद के रिएक्शंस के वजह से काफी सरप्राइज हो जाता हूँ, राइट? बिकॉज अप until that point you did not know that you had that संस्कार। तो सिस्टर शिवानी कह रही है हाँ, क्योंकि अभी इस पॉइंट तक आपको पता ही नहीं था कि आपके पास ये संस्कार भी है। यस, this happens because we souls carry recordings of several sanskars acquired in our past births. Let us consider ourselves to be a CD with 100 pre-recorded songs or sanskars. In the current lifetime, we may have played only 50 songs. This means the remaining 50 are yet to be played. सिस्टर शिवानी कह रही है कि हम जो सोल्स होती हैं, हमारे अंदर में रिकॉर्डिंग होती है सेवरल संस्कार, जो कि हमने अक्वायर किए होते हैं अपने पास्ट बर्थ्स में। तो ऐसे हम अगर कंसिडर करके देखेंगे खुद को कि हम एक सीडी है जिसमें प्री रिकॉर्डेड 100 सॉन्ग्स हैं। और ये जो सॉन्ग्स हैं इन्हीं को हम संस्कार बोल रहे हैं। तो अभी इस करंट लाइफ टाइमिंग में हमने 50 सॉन्ग्स तो प्ले कर लिए, उसमें से मतलब रिमेनिंग 50 अभी प्ले होना बाकी है। इसी वजह से हम कई बार सरप्राइज हो जाते हैं कि मैंने ऐसा काम कैसे कर दिया। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द रिमेनिंग सॉन्ग्स, राइट? तो हम तो बाकी रिमेनिंग सॉन्ग्स जानते ही नहीं है जो हमारे अंदर संस्कार है, राइट? Then all of a sudden, some situation triggers one of those unknown songs to play that leaves us and others around us surprised. Looking at our own response, we say, this is not me. But the truth is, this is the me that I did not know of. पर एक तो कुछ अगर सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, कुछ ट्रिगर हो जाता है और फिर हमसे वो जो अननोन सॉन्ग्स हैं वो प्ले हो जाते हैं, यानी कि उन संस्कार के थ्रू हम रिएक्ट कर देते हैं। और उससे हम खुद भी सरप्राइज होते हैं, हमारे आसपास के लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। कई बार हम खुद ही कह देते हैं कि ये मैं हूँ ही नहीं, पर सच क्या है कि ये मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। ये मेरा वो वाला पार्ट है। सो वी हैव टू बी अवेयर दैट देयर आर स्टिल मेनी सॉन्ग्स रिकॉर्डेड लाइक अस that have not played in this lifetime but could get played any time. And when that happens, we must take responsibility for whatever sanskar emerges, whether negative or positive. Accept that sanskar is our own. Accept that the sanskar is our own. If it is a positive sanskar, we should hold on to that speciality and use it again and again in our life. If, however, a negative sanskar emerges, we must take care not to replay it if a similar situation arises in future. जब लाइफ में सिचुएशंस आते हैं और हमसे वो सीटी प्ले हो जाती है कुछ अननोन सॉन्ग्स की, यानी कि कुछ संस्कार हमारे अंदर के ही हैं जो जिनको हम जानते ही नहीं, और हमने उस तरह से रिएक्ट कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये मेरे खुद के ही संस्कार है। तो ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरा ही संस्कार है। ऐसे खुद को रिजेक्ट नहीं करना है कि ये मैं हूँ ही नहीं, मुझसे ये गलती कैसे हुई, ऐसे नहीं। सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो जो पॉजिटिव, अगर वो संस्कार आपका पॉजिटिव था तो उसको क्या करेंगे, उसको अपनी स्पेशलिटी बनाएंगे, उसको बार बार यूज करेंगे। तो जब हम उसको बार बार यूज करेंगे वो हमारे नेचर में आएगा। और अगर वो संस्कार नेगेटिव होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उस सीडी के उस वाले सॉन्ग को रिप्ले नहीं करना है अगर सिमिलर सिचुएशन अराइज होती है फ्यूचर में। इसके लिए एक प्रैक्टिस काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर हमारी सिचुएशन में, अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आई और हमने रिएक्ट किया, तो ये चीज तो हमें जानता है ना सबसे ज्यादा बेहतर खुद को,
तो हमने ध्यान रख लिया कि ये हमसे गलती हो गई। तो पहले क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीज मेरे अंदर संस्कार होंगे पुराने एक्वायर्ड। अब दूसरा क्या करना है आपको, कि आप खुद को विजुअलाइज करेंगे उस सेम सिचुएशन में वापस। उसके बाद आपको किस तरह से रेस्पॉन्ड करना, उसको विजुअलाइज करें। तो जब आप वो उस सेम सिचुएशन को वापस से विजुअलाइज करके इस बार राइट करना करेंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने मन में अपने आप को बता दिया है कि क्या सही तरीका था। But we are so busy watching our other sanskar that we do not look at our own. We cannot really look at other sanskars, even if we claim to know others well. That may not be the case. सुरेश जी कह रहे हैं कि हम दूसरों के संस्कार को देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद के संस्कार ही नहीं देखते। तो सिस्टर शिवानी कह रही है कि हम दूसरों के संस्कार तो देख ही नहीं सकते। अगर हम ऐसा बोलते भी है ना कि हम उनको जानते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं। We at least know them from our point of view। तो सुरेश जी कह रहे हैं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जानते हैं। Our point of view could be completely different from who they actually are। तो सिस्टर शिवानी कह रही है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू completely different हो सकता है कि वो रियल में कौन है। Suppose you are a very sincere person. I, on the other hand, have the sanskars of doubt and criticism. You may do your work with utmost sincerity, but since I do not possess the sanskar of appreciation, I'll always criticize you irrespective of how much effort you put in. As I have the sanskar of doubt, I think that he really do his job honestly. Maybe he had a selfish motive behind doing it. I may never be able to truly see your sanskar of sincerity because I always view you through my filter of doubt. So can I really know you? No, I cannot। तो सिस्टर शिवानी ने यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि मान लीजिए कि आप एक बहुत सिंसियर पर्सन है और हमारे अंदर में क्या है, डाउट और क्रिटिसिज्म के संस्कार भरे पड़े हैं। तो आप अपना जॉब बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन मेरे अंदर संस्कार ऑफ एप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए हम आपको अप्रिशिएट नहीं करते, बस क्रिटिसाइज करते रहते हैं। डाउट वाले संस्कार की वजह से ऐसे सोचते हैं कि क्या आपने सच्ची में ऑनेस्टली अपनी जॉब करी है, क्या आपका कोई सेल्फिश मोटिव है इसको करने के पीछे। तो क्या हुआ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो ओरिजिनल संस्कार ऑफ सिंसियरिटी है वो हमें नहीं पता लग पाया, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और आपका जो संस्कार है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो हमने अभी देखा ना कि तीन इमेजेस हमारे मतलब कि एक पर्सन की होती है, एक जो हम उनसे मिलने से पहले क्रिएट करते हैं, एक जो उनको मिलने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करते हैं, और तीसरा जो वो पर्सन रियली होता है। The first image that we create of a person is how we want him to be. The second image is how we perceive him to be. The third is what he actually is. And these three images could be completely different from each other. We may probably never come to know about the third image, how a person actually is, while we constantly try to match the first two images. When we attempt to change the person as we perceive him into the person we want him to be, it can be very damaging for us, the other person and the relationship। तो ये जो तीन इमेजेस हम जानते हैं ना, ये तीनों इमेजेस completely डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। अगर और जो थर्ड इमेज है जो कि वो पर्सन एक्चुअली है, वो तो हम जान पाए ये जरूरी ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट दो इमेजेस हैं, जो फर्स्ट टू इमेजेस हैं, एक जो हम चाहते हैं कि आप कैसे हो और दूसरा आपसे मिलने के बाद जो हमने परसीव करा है कि आप कैसे हो, इन दोनों इमेजेस को ही हम कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं कि मैच हो जाए। मतलब हम जैसे आपको परसीव करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसा हम आपको चाहते हैं, जैसे हम अ, आपको चाहते हैं कि आप ऐसे बने, जब हम इन दोनों चीजों को मैच करने की कोशिश करते हैं तो ये काफी डैमेजिंग होता है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। We create a relationship in our mind, it does not exist outside। We do not have a relationship with others but with their image that we have created in our consciousness। हमारे माइंड में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जो कि बाहर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हमारा रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ में भी। पर वो जो इमेज होती है ना जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, वो इमेज हमने ही क्रिएट करी होती है अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग।
If you are an absolutely dishonest person, but the mental image I have of you is that of an honest person, then despite everything you do, I'll continue to see you through that filter. I have experienced this myself. A man used to visit us. He looked like a cheat to me, but my son would always praise him. Both of you can form a different image about the same person in your consciousness. You will go by your perception and may not be able to understand your son's perception. सुरेश जी कह रहे हैं कि ये उन्होंने एक्सपीरियंस करा है। एक एक आदमी था जो कि इनको चीप लगता था, लेकिन इनके जो सन है वो हमेशा उनको प्रेज करते थे। तो सिस्टर शिवानी कह रही है हम दोनों की डिफरेंट इमेजेस थे, आप दोनों ने उस सेम पर्सन को अपनी अपनी कॉन्शियसनेस से देखा और उसको उस तरह से परसीव किया। तो आप अपने सन का परसेप्शन नहीं अंडरस्टैंड कर सकते एंड ही विल नॉट अंडरस्टैंड माइंड। ही विल थिंक दैट आई डाउट एवरीवन आई नो। सुरेश जी कह रहे हैं कि हाँ, और मेरा बेटा मेरा परसेप्शन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है। वो सोचता है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ उस पर डाउट करता हूँ, राइट? We should not try too hard to change the other person's perception because it may not be possible for him to see with another point of view. The earlier we realize this, the better it will be for us. सिस्टर शिवानी कह रही हैं कि हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरे के परसेप्शन को चेंज करने की, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कई बार उनके लिए दूसरे व्यू पॉइंट से देखना। और जितना जल्दी हम ये रियलाइज करते हैं उतना ही अच्छा रहता है हमारे लिए। The fact is that the hundreds song recordings on me may not match with yours. You may take a lifetime to convince me to play a song that is recorded on the CD, but it cannot happen because that song is not recorded on me. I simply will not know how to play it. Understanding each other becomes difficult at times because we do not see through the same filters. We should not try too hard to convince others to our point of view because it creates conflict in relationships. अगर हम फिर से सीडी की तरह विजुअलाइज करते हैं कि दो पर्सन है और एक जन क्या चाहते हैं कि उनका जो संस्कार है, मतलब कि जो उनकी सीडी पे रिकॉर्डिंग है, वो दूसरे पर्सन को चाहता है कि वो भी उस संस्कार को अपनाए। पर दूसरे पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी सीडी यानी उनकी सोल में वो संस्कार रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है उसको प्ले कैसे करना है। एक दूसरे को समझना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है जब हम सेम फिल्टर से नहीं देखते हैं। हमें बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए दूसरे को कन्विंस करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। We should have no expectations from anybody at all. सुरेश जी कह रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमें दूसरे से कोई भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए। If you and I have different set of songs on our CDs and I expect you to play from your CD a song which is recorded on mine, what good will that expectation yield? तो सिस्टर शिवानी एक और क्वेश्चन उनसे पूछती है कि अगर हमारे पास में डिफरेंट सेट ऑफ सॉन्ग्स है हमारी सीडी में और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप एक सॉन्ग प्ले करें अपनी सीडी में जो कि मेरी सीडी में रिकॉर्डेड है, तो इससे क्या होगा? इस एक्सपेक्टेशन से क्या अच्छा होगा? But people must have something in common, like respect for each other on the basis of which they can live comfortably. सुरेश जी कह रहे हैं पर कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, जैसे कि एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, और ये रेस्पेक्ट होगी तब वो दोनों कंफर्टेबली रह पाएंगे। They may not have even a single song that is common between them. Look at the journey of the soul. Everyone has experienced different lives. Some may have taken 50 births before us, some may have taken 70. In all these lives, each one has had different sets of parents and faced different situations. Even if we look at the current lifetime of two souls that have been in their present bodies for the past 50 years, their experiences could be completely different from each other's. Even if we look at the current lifetime of two souls that have been in their present bodies for the past 50 years, their experiences could be completely different from each other, hence, their recordings would be different. It is possible that
Not even a single situation that one faced occurred in the other's lives. Their cultures, family values, conditioning, religion, and even countries could be different. If there can be so many differences between two people in just the last 50 years, then imagine the enormity of differences they are bound to have in 50 lives. There is unlimited recording on us souls. One person's definition of trust and honesty will be different from another, and even such minor differences could create conflict. For example, you may respect me, but you may not respect me in the manner I want you to. I'll expect you to respect me according to the sanskars recorded on me. अगर हम सोल्स की जर्नी को देखते हैं तो वो एक दूसरे से एकदम अलग होती है। किसी ने हमसे पहले 50 बर्ड्स लिए होते हैं, किसी ने 70 बर्ड्स लिए होते हैं, और इन सब बर्ड्स में सबके पास अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, अलग सिचुएशंस होती है लाइफ में, तो उनके संस्कार उस अकॉर्डिंग डेवलप होते रहते हैं। अगर हम सिर्फ एक लाइफ टाइम का देखें, करेंट लाइफ टाइम में दो जन को, तभी भी हमें कितने सारे डिफरेंसेस दिख जाते हैं। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि जो एक पर्सन की लाइफ में ऑकर हुई होती है पर दूसरे पर्सन की लाइफ में बिल्कुल भी ऑकर नहीं होती है। तो ये इतने सारे जब डिफरेंसेस होते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? अगर कोई पर्सन के ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी का डेफिनेशन है तो दूसरे पर्सन से वो अलग हो सकता है। उनके माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे। जैसे कि एक पर्सन रेस्पेक्ट करता है पर वो दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट नहीं करता है, और अगर दूसरा पर्सन एक्सपेक्ट करे कि वो उसके डेफिनेशन ऑफ रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट दे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि संस्कार जो है रिकॉर्डेड दोनों सोल्स में वो डिफरेंट है। देन व्हाई डू डिफरेंट पीपल पे रिस्पेक्ट इन टेम्पल्स इन द सेम मैनर? तो सुरेश जी कह रहे हैं तो अलग अलग लोग टेम्पल्स में रिस्पेक्ट कैसे सेम मैनर में देते हैं? पीपल परफॉर्म द सेम रिचुअल्स इन टेम्पल्स दो देयर थॉट्स विल रिमेन डिफरेंट। देयर आर सो मेनी पीपल who do not even go to the temple. You are looking like those whose one song or sanskar is common. सिस्टर शिवानी कह रही हैं कि जो लोग होते हैं टेम्पल्स में सेम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके जो थॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो टेम्पल जाते ही नहीं हैं। आपने सिर्फ उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल लिया जिनकी सीढ़ी में एक सॉन्ग या एक संस्कार कॉमन है। They are somewhat similar. Even among those who go to the temple, they all do it with a different feeling. तो सुरेश जी कह रहे हैं कि कुछ तो सिमिलैरिटी है ना उनके अंदर। तो सिस्टर शिवानी कह रही है अच्छा जो लोग टेम्पल जाते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फीलिंग होती है ना जिसके साथ वो रिचुअल करते हैं वो फीलिंग सबकी डिफरेंट होती है। सम might be going to the temple out of fear, others due to greed, and some others due to family's insistence। कुछ लोग डर की वजह से जाते हैं, कुछ लालच की वजह से जाते हैं, और कुछ लोग फैमिली के प्रेशराइज करने की वजह से जाते हैं। Even if all the people going to temple do so as a mark of respect, there will still be a difference in the level of respect. They are sitting amidst greenery, and you may not find even two leaves here that are completely the same। सिस्टर शिवानी कह रही है कि मंदिर में जाना एक तरह का रेस्पेक्ट देना है, पर वो जो रेस्पेक्ट हम देते हैं ना उसके लेवल में भी डिफरेंस आते हैं लोगों के बीच में। और ये जैसे ये बीइंग लव जो है ये इनका एपिसोड आता था, तो ये ग्रीनरी में बैठे हुए, तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं ग्रीनरी में बैठे हैं पर आपको टू लीव्स नहीं मिलेंगे जो कि कंप्लीटली सेम। So it is my fault if I am looking for identical leaves। तो सुरेश जी कह रहे हैं तो मतलब ये मेरी ही गलती है अगर मैं सेम लीव्स खोजूं। तो सिस्टर शिवानी कह रही है ब्यूटिफुल, दिस इज इट इज आवर फॉल्ट दैट वी लुक फॉर आइडेंटिकल लीव्स एंड वी कैन वेस्ट आवर होल लाइफ डूइंग इट। If we decide to be happy only when we find two identical leaves, what what are we writing in our destiny? Sadness, anger, irritation, dissatisfaction, and never to be fulfilled expectations. All conflicts will be resolved when we understand that our definitions do not match। सिस्टर शिवानी कह रही है कि अगर हम आइडेंटिकल लीव्स खोजने जा रहे हैं तो हम अपनी पूरी लाइफ भी वेस्ट कर सकते हैं।
हम अगर खुद को ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि हम तभी हैप्पी होंगे जब हमें दो आइडेंटिकल नीड्स मिलेंगे, तो हम अपनी डेस्टिनी में क्या लिख रहे हैं? सैडनेस, एंगर, इरिटेशन, डिससेटिस्फैक्शन एंड नेवर टू बी फुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी है वो रिजॉल्व तब होंगे जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे डेफिनेशंस मैच नहीं करते। आई एग्री विद यू दैट नो टू souls कैन बी alike when two lives cannot be. हाउ शुड आई ब्रिंग being love into the picture? सुरेश जी कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जो दो सोल्स हैं वो दो नीड्स की तरह अलाइक, सेम नहीं हो सकती। तो फिर इसमें हम बीइंग लव को कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं? बीइंग लव कैन वर्क व्हेन वी लव एंड अप्रिशिएट ईच नीड एज इट इज, हाउएवर इट इज। इसे भी अंडरलाइन कर लो। बीइंग लव कब काम करेगा? जब हम लव करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे हर एक लीव को, जो जैसे है उसको वैसे ही लव एंड अप्रिसिएशन देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तब वो बीइंग लव कहलाएगा। सपोज यू ओनली एक्नॉलेज दैट दिस इज अ लीफ ऑफ वन काइंड एंड दैट लीफ इज ऑफ अनदर काइंड। Even in that case, love will flow because there is no blockage for the energy of the soul. तो सुरेश जी कह रहे हैं, अगर हम ऐसे एक्नॉलेज करें कि ये लीफ इस काइंड की है और ये दूसरी लीफ उस काइंड की है, तो सिस्टर शिवानी कह रही है इस केस में भी जो लव है वो फ्लो होते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं हो रही है एनर्जी में, क्योंकि हमने क्या एक्सेप्ट करा कि ये लीफ इस तरह की है, ये लीफ इस तरह की है। वी आर नॉट लेबलिंग देम एज गुड लीफ, बैड लीफ, स्मॉल लीफ एक्सेट्रा। तो हम ऐसे लेबल नहीं कर रहे हैं, राइट? If we look at something as it is, our energy blockage gets cleared and our love begins to flow. जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, वो जिस तरह से उसको वैसे ही देखते हैं, तो हमारी जो एनर्जी ब्लॉकेज होती है वो क्लियर हो जाती है और हमारा जो लव है वो फ्लो करता है। पीपल आर डिफरेंट, सो वी शुड हैव नो प्रॉब्लम विद इट। If we keep trying to match our definitions of right with others, it is a never ending game. By doing so, we will only create for ourselves a destiny of struggle. When the sanskars of even parent and child are different, how can we expect others to be like us? You had said in the beginning of this conversation that you are at times surprised at your own unexpected reactions. Anybody's latent sanskars can get activated anytime. People will not stay the same as we have known them to be for years. Even beautiful sanskars can get activated of a sudden. For example, somebody we consider weak may suddenly show tremendous willpower in a particular situation and surpass our expectations. The opposite is also possible. One small effort we all have to make is to let go of the past. It is possible that people acted in the past under the influence of some latent sanskar. अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई उससे हमें क्या समझ आया? जो डेफिनेशंस होती है राइट रॉन्ग, वो सब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने संस्कार के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, और एक ये नेवर एंडिंग गेम होता है। और जैसे सुरेश जी ने भी कहा कि वो कई बार अपने संस्कार को देख करके ही सरप्राइज हो जाते हैं कि ये हमारा संस्कार, ये उनका खुद का संस्कार है। उसी तरह लोगों के भी संस्कार अचानक अचानक ट्रिगर हो जाते हैं। तो हमें एक स्मॉल एफर्ट क्या करना है? हमें पास्ट को लेट को करना है। हो सकता है ना, जैसे हम अपने किसी संस्कार के इन्फ्लुएंस में कुछ रिएक्ट करते, वैसे ही जो लोग भी थे उस वक्त वो कोई संस्कार के इन्फ्लुएंस में हो तब उन्होंने उस तरह से काम किया। इसीलिए हमें लेट गो करना सीखना होगा। ऑलमोस्ट एवरी संस्कार इज देयर इन ऑल ऑफ अस एंड वी डू नॉट नो व्हाट गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन। तो सुरेश जी कह रहे हैं कि जो सारे संस्कार होते हैं वो हमारे अंदर में होते हैं और हम जानते नहीं है कि कौन सा संस्कार कब एक्टिवेट हो जाता है। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल souls have the same original sanskars of wisdom, purity, peace, love, happiness, bliss, and power. This is true even for those in whom we are unable to spot a trace of these. Remember that irrespective of the songs a person is playing currently, he surely has these seven recordings. We should try to look at others in this consciousness. If we focus only on a person's current sanskars, which are acquired, rather than his original sanskars, we will form a very different image of him. हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या ध्यान रखना है? सेवन ओरिजिनल संस्कार होते हैं सोल्स के अंदर। क्या क्या? प्योरिटी, पावर, पीस, हैप्पीनेस, विजडम, ब्लिस एंड पावर। ये सारे संस्कार सबके अंदर अंदर में होते हैं और ये ओरिजिनल संस्कार हैं। उसके अलावा जो बाकी हम देखते हैं ना, वो सारे एक्वायर्ड संस्कार होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें एक इमेज नहीं क्रिएट करनी है, हमें ये ओरिजिनल संस्कार ध्यान रखने हैं। ये सेवन रिकॉर्डिंग सारे के सारे सोल्स में होते हैं।
I have to be playing one of those 7 original songs myself to be able to see others in that light. If I am on another track, it is not going to work. Absolutely. Unless we ourselves are using those 7 qualities, we will not be aware that others have them too. सुरेश जी कह रहे हैं कि अगर ये 7 रिकॉर्डिंग्स मेरी खुद की चलती रहेंगी ना, तभी मैं राइट ट्रैक में हूँगा और तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ दूसरों के अंदर में भी ये 7 क्वालिटीज हैं। अगर मैं खुद ही दूसरे ट्रैक में होऊंगा तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि दूसरों के अंदर में भी ये है। तो सिस्टर शिवानी कह रही है कि हाँ, हमें इन 7 क्वालिटीज को खुद को मर्ज करना होगा, तभी हमें अवेयरनेस आएगी कि दूसरों के अंदर में भी ये वाले संस्कार हैं। We will look at another soul with the consciousness that it has those original qualities. There is high probability that our vibrations will activate those in it. This is why soul consciousness is so important. Raj Yoga teaches us to make inner effort so that we are able to create a consciousness that allows us to see others as pure, peaceful, loving souls. If someone is shouting at us, but we create a thought he is originally a peaceful being, then firstly we will be able to play our original song or sanskar instead of reacting at him. Secondly, the vibrations of peace